Namaskar, I am Professor Mrinal Mehta from JG College of Commerce, Ahmedabad. Friends, today we are going to do the subject Indian Financial System. This is the subject for BCom Semester 3 students of Gujarat University. Today we are going to do one of the important question which is often asked in your exam, that is difference between general insurance and life insurance. Okay. अगर आप ये एक डिफरेंस करते हो ना तो इसके साथ इन दोनों के फीचर्स आपके ऐसे ही याद हो जाएंगे. जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है वो ही इनके फीचर्स भी है. ठीक है, चलिए. Your answer is in three part. First is a point of difference, second is a general insurance, and the third part is life insurance. Now first let us understand the meaning of both. First, that is general insurance. General insurance provide us protection against the probable contingencies, like business है तो शायद फायर का चांसेस है, या कुछ चोरी हो जाए, या कोई मशीन को डैमेज हो जाए. ऐसे जो प्रोबेबल कंटीजेंसीज है उनके लिए जब इंश्योरेंस लिया जाता है, ठीक है, तो वो इंश्योरेंस हमें जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में मिलता है. पर लाइफ के अनप्रिडिक्टेड इवेंट्स, ठीक है, जैसे किसी इंसान की डेथ, हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. उसको जहां प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसको जहां कवर किया जा सकता है, ठीक है, उस प्रोटेक्शन को हम लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस के हेड के अंदर. ठीक है. सो जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड अस द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रोबेबल रिस्क, whereas life insurance provide us the protection against unpredicted risk. Clear? Okay, next. General insurance is established by British government in year 1850 in the city Kolkata, whereas life insurance get established after 1912. Both of this, life insurance and general insurance, are regulated by two different acts. General insurance is regulated under General Insurance Business Nationalization Act 1972, whereas life insurance is regulated under Life Insurance Corporation Act 1956 and another act, that is Insurance Act 1978. Then the types of insurance. General insurance have a various types, but the types of policies under life insurance are very few. जनरल इंश्योरेंस के अंदर जो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कवर किए जाते हैं वो है मैराइन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, एंड वी हैव अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स. Whereas in life insurance, they provide us basically a two kind of policies, that is endowment policy and whole life insurance policies. Now the risk. General insurance provide us or protect us or cover short-term risk period, that is the period of 12 months. यानी जनरल इंश्योरेंस के अंदर जो भी चीज कवर होती है उन सब का कवरेज सिर्फ और सिर्फ 12 मंथ्स के लिए होता है, उससे आगे नहीं होता. ठीक है. अगर किसी इंसान ने 1 जनवरी को कवरेज लिया है, 1 जनवरी 2020 को, तो 31 दिसंबर 2020 को वो लैप्स हो जाएगा. But whereas life insurance gives us a protection, gives us a coverage for the long term. It may be 1 year and it may extend it to the 15 years. General insurance do not provide us any return at the end or at the end of the term of the policy. यानी Mr. X है, उन्होंने 1 जनवरी 2020 को अगर इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, फायर इंश्योरेंस, पूरे साल में उनकी कंपनी में आग नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ. 31 दिसंबर 2020 को जब ये टर्म कंप्लीट होगी तो उनको कुछ नहीं हुआ, वहां आग नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, तो उनको रिटर्न में भी कुछ नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं है कि अच्छा कुछ नहीं हुआ तो चलो वी पे यू बैक द प्रीमियम, ऐसा नहीं होगा. ठीक है. So it does not provide us any kind of return at the end of the term of the policy.
But in a life insurance, policy holder get written maybe on a periodic basis or maybe at the end of the term of the policy or maybe as per the terms and conditions of the policy. डेफिनेटली हम लाइफ इंश्योरेंस लेते ही इसीलिए है कि भाई एक पर्टिकुलर एज के बाद हमको वो पैसा मिले, या तो फिर अगर हम नहीं है उस दिन हमारी उस टाइम पर हमारी फैमिली को प्रोटेक्शन मिले. नो क्लेम बोनस, यानी आपने अगर पूरे साल में कोई क्लेम नहीं किया है, ठीक है, तो उसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर में अगर उसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ या वहीं पे आप कंटिन्यू करते हो उस इंश्योरेंस को, तो आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल इंश्योरेंस, डेफिनेटली वी विल गेट नो क्लेम बोनस बेनिफिट, but same benefit is not available in the life insurance. Tax benefit. For the general insurance, there is no tax benefit, but whereas in life insurance, whatever amount of premium is paid is considered as an investment and it gets deduction or it is deductible under section 80C of income tax act. ठीक है, यानी जनरल इंश्योरेंस के अंदर आपने जो भी प्रीमियम पे किया है उसको आपके टैक्स बेनिफिट में कुछ नहीं मिलेगा आपको. पर अगर हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की, तो लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स हम पे करते हैं उसको एक तरह से इन्वेस्टमेंट माना जाता है, ठीक है, और इसको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन मिलता है आपको. कितनी कंपनीज है? तो वी हैव 15 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज and 16 life insurance companies. Then premium. In a general insurance, premium has to be paid in a lump sum. जनरल इंश्योरेंस के अंदर आप जो प्रीमियम पे करते हो वो लमसम पे करते हो, ठीक है, एक बार पे किया खत्म, जैसे टर्म खत्म होगी अगेन पूरा नया कॉन्ट्रैक्ट. पर लाइफ इंश्योरेंस के अंदर द प्रीमियम हैज टू बी पेड ओवर द इयर्स, यानी कुछ सालों तक हमको ये पे करना पड़ेगा, हर बार नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जनरल इंश्योरेंस का जो है, डेफिनेटली जनरल इंश्योरेंस ही शॉर्ट टर्म के लिए, तो जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा दैट इज ऑल्सो फॉर द शॉर्ट टर्म. लाइफ इंश्योरेंस हम जानते हैं कि वो लॉन्ग टर्म कवरेज दे रहा है, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है. इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, कब क्लेम कर सकते हो? तो यहाँ पर लॉसेस जो है वही रिम्बर्स होंगे, यहाँ पर आपको कोई प्रॉफिट गेनिंग नहीं होने वाला. आपका 50,000 का लॉस हुआ है तो इंश्योरेंस उसको जिस हिसाब से इवेल्युएट करेगी उतने ही पैसे मिलेंगे. आपको ये पैसे तभी मिलेंगे जब वो इवेंट होगा, यानी आगे जैसे मैंने बताया आपको कि आग लगेगी तो ही ये पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि आग लगी नहीं, लॉस हुआ नहीं, तो रिम्बर्स किस चीज को करें, ठीक है. जनरल इंश्योरेंस के अंदर तभी रिम्बर्समेंट मिलता है जब वो लॉसेस क्रिएट होते हैं या वो अनसर्टेन इवेंट होता है. पर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेबल अमाउंट आपको उस इवेंट के अकरेंस पे या उसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी पे मिल जाता है, जैसा आपका इंश्योरेंस प्लान. वैसे अगर मेरा प्लान है 10 इयर्स मैच्योरिटी पीरियड का, तो एट द एंड ऑफ द 10th ईयर मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा. या फिर मेरा प्लान ऐसा है कि व्हेन आई एम नॉट देयर माई फैमिली गेट द बेनिफिट, तो जब मैं नहीं होंगी तब मेरी फैमिली को उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है. आई थिंक क्लियर. थैंक यू फ्रेंड्स, thank you for your attention. Thank you. Bye bye. Take care, friends.